वाहिगुरू। राख पिता प्रभु मेरे, राख पिता प्रभु हो मेरे, मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। पंच बिखादी एक गरीबा, रखो हो रखन हारे। खेद करें अर बहुत संतावें, आयो शरण तुहारे। कर कर हारे वणिक बहु भांति, छोड़े कतहु नाही। एक बात सुन ताकी ओटा, साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोहे, निर्भव गुरु का शब्द कमाया। जीत लय ओए महा बिखादी, सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाणी। राख पिता प्रभु मेरे, राखो पिता प्रभु मेरे, राखो पिता प्रभु। सारे रसना पवित्र करो। राखो पिता प्रभु मेरे, राखो पिता प्रभु मेरे, राखो पिता प्रभु। बिन भगवंत नाही अन कोय, बिन भगवंत नाही अन कोय, बिन भगवंत। मारै राखै को सोए, मारै राखै को सोए, मारै मारै राखै को सोए, मारै राखै को सोए, मारै। भगवंत नाही अन कोय, बिन भगवंत नाही अन कोय, भगवंत नाही अन कोय, बिन भगवंत। वाह। बिन भगवंत नाही अन कोय, मारै राखै एको सोए। सतगुरु जी का पावन पवित्र मनोहर वाक पंचम पातशाह हजूर का उच्चारण किया होया। गौड़ी राग दे विच चार पदां दे विच जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पन्ना 192 ते सुभायमान है। मेरे सत्कारयोग वीर भाई साहब ज्ञानी रणजीत सिंह होरां दे पासों प्यार सहित सरवण कीता पाने और मैनू आदेश किया नहीं कि मैं हाज़री भरां शब्द की विचार करन दा आपां यतन करिए। तुसीं सारे बहुत भले हो, भले भागां वाले हो। असीं सारे समझते हैं कि रोज़ बंगला साहिब पहुँच सकना कठिन है। दूर दुराडे रहने वालियां वास्ते भी, विदेशों में रहने वालियां वास्ते भी रोज़ जुड़ सकना कठिन है। वीकेंड जिसनों सैटरडे संडे कहा जाता है, शनिचर ऐत कमां तो तकरीबन छुट्टियां होंदियां ने।
ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਹੀ ਚਲੀਏ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਹੀ ਜੁੜ ਬਈਏ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰੋ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਰਾ ਇਸ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਬਣੇਗੀ ਨਾ। ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਵਰ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਰ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੁੱਢਲਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਪਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਨ ਰਹੋ, ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਓ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀਰਤਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਪਾਵਨ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਭਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ। ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਨਾ 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਤ ਵੀ। ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੀ ਫਰਦਰ ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਉਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਉਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ
ना ही आन कोए। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरी अतियो, मेरे प्यारेओ, दृढ़ करो। बिन भगवंत करतार तो बिना। करतार दे कितने सारे शुभ नाम, पवित्र नाम गुरबाणी दे विच वर्ण विच आए, उन्हां विचों एक नाम भगवंत है, जिसनों आखिया भगवान, भागां वाला। उस तो वड्डा भागां वाला होर कोई नहीं। वही है जिहड़ा दूजियां दे ना झोली दे विच चंगे भाग पाउंदा है। वही है भगवंत, वही है। तो साहब जी ने स्पष्ट करके लिख दिता, बिन भगवंत ना ही अन कोए। अन मैंने हुंदा है होर, अन्य होर है, एक करतार ही है। मारै रख है एक सोए। मारन वाला भी वो है ते रखण वाला भी केवल वो ही है। मैं एक बार फिर अर्ज करदे हाँ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ बैठे हो जुड़ के लगातार बैठ सको, 8:30 बजे तक अरदास ਵਿੱਚ शामिल हो सको, तो वाह भला जे ਤੁਹਾਨੂੰ उठ के जाना भी पवे किसी कारण मजबूरन, तो यह सूत्र अपने हिरदे ਵਿੱਚ ना पक्का कर लो, दिल कर लो। अज का उपदेश महाराज का, तुसी बाहर आए हो ना, बाहरों आए हो जिस वे अंदर एंटर किया, तो खब्बे पासे अज का अमृत वेले का हुक्मनामा भी नोटिस बोर्ड पर लिखा होया है। उत्थे भी यही बचन है, आद पूरण मद पूरण अंत पूरण परमेश्वर। सिमरंत संत सर्वत्र रमन नानक आगनासन जगदीश्वर। पेखन सुनन सुनावनो मन में दृढ़िय साच, पूर रहो सर्वत्र में नानक हरे रंग राच। हर एक निरंजन गाइए सब अंतर सोई, कर्म कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई। खिन में थापो थापदा वाहिगुरु, तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप रवया सब लोई। जिसे आप बुझाए सो बुझ से निर्मल जन सोई। सतगुरु कहते ने मारै रख है, मारदा रखदा अवर ना कोई, और कोई नहीं है। मारै रख है एक को सोए, केवल एक ही है वो, एक करतार ही है। मरण दे बाबत साडे अंदर डर, रखिया दे बाबत साडे अंदर फिक्र। सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने कृपा करके ना अपने सिखां दे अंदरों ना ए मरण दा फिक्र, मौत दा सामना ये कड्डे ने, ये कड्डे ने। दुनिया दे विच जितने भी होर होए, शायद इस प्रकार का कोई लारा जा दे देन भी तू मरेगा नहीं, तेन कुछ होएगा नहीं। जदों असी ना डूंगी दृष्टि दे नाल गुरबाणी पढ़ते हाँ, पठन पाठन पाठ करते हाँ, मुतालिया करते हाँ, स्टडी करते हाँ, तो साढ़े सामने एक गल आउंदी है कि गुरु साहब ने इउं नहीं आखिया बई तैनू कुछ होएगा नहीं, कहते ने होएगा तैनू सारा कुछ। ना होएगा तो कहन तो फिर अर्थ ये हो जाएंगे बई तेरे ऊपर धुप नहीं पवेगी, तेरे ऊपर सर्दी नहीं आवेगी, तेरे ऊपर हनेरा नहीं आवेगा, इत्याद ऐ नहीं आखिया। इसी तरह सतगुरु ने यह नहीं आखिया तू मरेगा नहीं, अयों नहीं आखिया, किते नहीं इवें आखिया तू मरेगा नहीं। सिख नूं सावधान किया मौत का सामना कर, तू सामना कर। दुनियादार बाकी धर्मां वाले जिहड़े ने ना वो इस गल दे प्रति हैरान हुंदे ने, सिखां नूं यार मौत तो डर ही नहीं लगता, ये मौत तो घबराउंदे ही नहीं है। ये राह किन्ने विखाया सानू? सतगुरु महाराज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी ने सानू इस रस्ते ते तोरिया है। ना ही माड़े मोटे दुख सुख तो जिन्होंने धुप छां मैं आखिया है, इन्हां दुखां सुखां तो घबराउण वाली गल आखी है। देखो
साड़ी ना दृष्टि थोड़ी है, असी लम्मी दृष्टि वाले नहीं हाँ आम तौर पर। मैंने क्षमा करो जे आप संगति रूप च बैठे हुए हो, गुरु का रूप संगत हो, मैं व्यक्तिगत रूप से जिस वे वचन करा या यूँ कह लो कि मैं आप इन्नी लंबी दृष्टि वाला नहीं, मैनू मुआफ कर दो जे तुसी। असी छेती डोल जाते हैं, बुखार चढ़े आ, शरीरक तौर पर कोई होर तकलीफ हुई, असी छेती दौड़ गए, डर गए, असी घबरा गए, तो फिर असी तंदुरुस्तियाँ मंगते हैं। ऐसा नहीं आख्या सतगुरां ने कि तुसी मंगो ना तंदुरुस्ती, तंदुरुस्त तुसी रवो ना, ऐं नहीं आख्या। पर कहते ने तुसी डरो नहीं, ये करतार दे रंग ने। कोई शरीर ऐसा नहीं जिहड़ा दुख सुख विचों नहीं लंघदा, कोई शरीर ऐसा नहीं बनया होया। तो कोई मनुख ऐसा नहीं जिसके उपर धुप नहीं होवेगी, जिसके उपर रात नहीं पवेगी। सबना नूं धुप्पे भी लंघना पवेगा तो रात विचों भी लंघना पवेगा, लेकिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वाहिगुरु दे नाल जोड़ दिता। तू धुप्पां विच तुरिया फिर, धुप तैनूं साड़ेगी नहीं, तेरी सहनशीलता इन्नी ज्यादा हो जाएगी। जिहड़ी धुप दूजियां दा तन ते मन रूह देंदी है ना, वो धुप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तपत माए ठांड वरताई, इस प्रकार की ना गल बना दी जिन्हों असीं कहते ना इम्यूनिटी। साड़ी अंदर की इम्यूनिटी इन्नी वधा दी, अंदर सहनशीलता इन्नी वधा दी कि माड़ी मोटी बीमारी तो होर जिहड़ा है सारा कुछ वो साड़ी चित्त बिरती ते असर ही कोई नहीं करता, वो असर ही नहीं करता। तेरा किया, बोलो सारे, तेरा किया मीठा लगा। इत्थे सिख खड़ो गया, पहुँच गया और पहुँचया गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी की पंजवीं सतगुरां की उंगल फड़ के, 8वें पातशाह महाराज की उंगल फड़ के पहुँचया। एक बचन मैं छोटा जिहा दोहरा दियां, तुसीं सारे आपां सारे सतगुरां के चरणों में इत्थे आउंदे आ। महाराज गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरण छो स्थान ते श्री हरकृष्ण ते आई है, जिस डिठा सब दुख जाए। वार वार असीं पाउंदे पढ़ते हैं, गाउंदे हैं असीं। फिर असीं ना इच्छा रखते हैं गुरु हरकृष्ण साहब ना साडे कृपा दृष्टि नाल तकन, तो मेरे भी सारे दुख दूर हो जान, असीं सारे चाहुंदे हैं। और पिछोकड़ में साडे पास इतिहास है कि गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह मेहरबान जदों इत्थे आए ने, तां ਜਿਹੜਾ भी आया उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ तन के दुख दूर किए। जिसनों मन के दुख का एहसास होया उनके मन के दुख भी दूर किए। यह बंगला साहब सरोवर जिहड़ा है ना, ये उस वेले के एक छप्पड़ की छोटे जिहे सरोवर की एक निशानी है, जिहड़ा शानदार सरोवर बनया। गुरु हरकृष्ण साहब ने वचन किया सी ना, इत्थे इशनान करो तुहाडा तन का दुख दूर हो जाएगा। मैं इयों भी बेनती करदा हुंदा तो प्रवान कर लेनी, तुहाडा धन्नवाद होवेगा। जिवें बच्चिआं नूं लैके तुसीं आउंदे हो, आया करो, इत्थे इशनान भी कर लिया करो, इत्थे इशनान भी करवा लिया करो। बहुत तर्कवादी ना बनो कि जल विच नहातिआं पिंडा धोतिआं कुछ नहीं फर्क पैंदा। वाहिगुरू कृपा दृष्टि होवे सही गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह की, ये तो उन्होंने मौज होनी है ना फिर, पर हो सारा कुछ जाता जे, ऐसा नहीं कि नहीं होता। तो मैं की कहने वास्ते जा रहा सा, जेड़े सतगुरु महाराज गुरु हरकृष्ण साहब बाकियां दे दुख दूर करने वाले ने, सतगुरु महाराज 7.5 साल की उम्र दे विच आप उठ के तुर पैंदे। वाहिगुरू आप उठ के तुर पैंदे। और बिल्कुल उस लास्ट डे की गल मैं तुहाडे सामने लिया के ते अगे चलना चाहता, ताकि ये कथा ये बात जिहड़ी है ना, ये साडे जीवन का हिस्सा बन जाए। भाई गुरबख्श महंत, वाहिगुरू भाई गुरबख्श मसंद, वो भी दिल्ली के रहने वाले सन। भाई कल्याणा जी की धर्मशाला के उन्हों का परिवार सेवा करने वालों के विचों एक सी।
बहुत निकटवर्ती सन। सत्कारयोग माता किशन कौर जी सराहने बैठे हुए ने। ਹੁਣ ਐਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਸਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ, ਚਿਹਰਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਉਸ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚੇਚਕ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨਾ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਐਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ੂ, ਹੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਹੋਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਬਤ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਮਹਾਕਵੀ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਓ, ਆਖ ਦਿਓ ਤਨ ਸਦੀਵ ਥਿਰ ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੀ ਕਹੋ? ਤਨ ਸਦੀਵ ਥਿਰ ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਫਰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਤਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸੱਦੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਖੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥੇ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣ, ਜੋ ਮੰਗਣਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਵੀ ਸਮਾਏ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਿਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ? ਵਾਹਿ ਆਪ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਬਾਲ ਵਰੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ? ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਖਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਚਾਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ
गुरु साहब छोटी छोटी उम्र में जाते रहे। गुरु अंगद साहब परसों चौथे गुरियाई ते विराजमान होए। कितनी उम्र सी उन्हां दी? उस वेले सिर्फ 35 वरे की उम्र सी। ते 1539 तो लैके 1552 तक 13 वरे उन्होंने सारी सेवा निभाई। टोटल उम्र कितनी हो गई? सिर्फ 48 साल। 48 साल का व्यक्ति कितने बुढ़ा हो जाता। चौथे पातशाह जी की कितनी उम्र सी भला? पंजवें पातशाह जी की शरीरक तौर पर कितनी उम्र सी? छेवियां की कितनी उम्र सी? सतवियां की कितनी उम्र सी? अठवियां के बाबत असी गल विचार लई ना हो। ਜਿਹੜੇ सतगुरु महाराज दूसरिਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मैं पूर्ण यकीन नाल आखदा सब कुछ कर सकते हैं, पर ना वो आप इस पासे तुरे ते ना सानू इस पासे तोरिया। वाहिगुरू जी की रजा दे विच दुख आया सिर मत्थे, सुख आया सिर मत्थे, घरां दे विच कलेश आए, वाहिगुरू घरां विच कलेश आए, वो भी सिर मत्थे। देखो असी विचारां रोज़ करते हैं तो रोज़ आप सुनते हाँ, तुसीं ध्यान करियो जे। मैं बीती शाम भी उत्थे 18 सैक्टर विच विचार कर रहा सा ते बेनती की, जेड़े सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज वली कंधारी दे वल कढ़ सकते हैं, एक ठग नूं सज्जन बना सकते हैं, एक राक्ष नूं भाई कौड़ा बना सकते हैं ते प्रचारक बना सकते हैं, वो श्री चंद नूं ठीक नहीं कर सकते। ये किहड़ी गल है? श्री चंद की शै सी जिहड़ा गुरु साहब जी की आग्या तो बाहर चलता? फिर लभण का यतन करो भी ये सारा कुछ क्यों होया। और एक समय की बात नहीं है, दूजियां दे पुत्रां ने जो बखेड़े खड़े किए, तीजियां दे पुत्रां ने जो बखेड़े खड़े किए, चौथियां दे पुत्रां ने प्रीति चंद होरां ते महादेव होरां ने जिहड़े बखेड़े खड़े किए। तुसीं रोज़ शाम नूं बहुत विस्तार दे नाल गुरप्रताप सूरज की कथा माणयोग जी दे पासों सरवण करदे हो, प्यार दे नाल सुनो समझो कि इन्हां बखेड़ियां विच घबराए सतगुरु। तुसीं एक पॉइंट नोट करियो जे, श्री चंद जी ने जो आखिया, लक्ष्मी चंद जी ने जो आखिया, दातू दासू जी ने जो किया, मोहन मोहरी जी ने जो किया, प्रिथी चंद ने महादेव ने जो किया, गुरु साहब सच्चे पातशाह ने उसका बदला नहीं लिया, बिल्कुल बदला नहीं लिया। ये मसला ही कोई नहीं, ये मसला ही कोई नहीं है। देखो जो असी इतिहास का पन्ना फुलांगे ना, तो साढ़े सामने ऐसिया ऐसिया बातां आउंदियां ने। महाराज सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी ने करतारपुर का युद्ध लड़िया, युद्ध फतेह किया, तो आसे पासे लाशां दे ढेर लगे हुए, उत्थे रहना सेहत पक्षों ठीक ना समझ के या होर कारणों तो ठीक ना समझ के, तो कीरतपुर नूं चाले पा लै। तुरन लगे हाँ, सिख नूं भेजिया धीरमल दे कोल, ते धीरमल नूं आखिया चल पुत्र तैयार हो, तुसीं भी आपां सारिआं ने कीरतपुर चलना है। धीरमल सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी के वड्डे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी होरां दे वड्डे सपुत्र सन। नंबर 2 ते उन्हां दे पुत्र सन हरराज साहब जो 7वें पातशाह बने। धीरमल वेर गया, मैं नहीं जाना नाल। पोतरा वेर गया, मैं नहीं जाना नाल। सतगुरां ने सिख नूं फिर भेजिया, जे तुसां नहीं जाना तो तुहाडे कोल पावन ग्रंथ साहब जी हैगे ने, सानू वो दे दिओ, असीं कीरतपुर साहब लैके चले जाइए। मैं नहीं देना। अड़ गए, अड़ गए तो किस दे सामने अड़े? अपने बाबा जी के सामने अड़े। तो बाबा जी जिहड़े दल भंजन गुरसूरमा वड जोधा बहु परोपकारी, आहा ते अड़न वाला कौन? ਉਹਦਾ पोतरा। तो उम्र किन्नी सी भला? लभ्यो किते इतिहास दियां जिसले बरीकियां असीं फोड़दे हां साडे सामने आउंदियां ने, तो हैरान हो जाइदा। ज्ञानी सोहन सिंह सीतल होनी भी ते होर विद्वान लिखते ने, दसदे ने उस वेले धीरमल होरां दी उम्र सिर्फ 7.5-8 साल दी सी।
मसंदा ने भावें पट्टी पढ़ाई तो भावें मां ने नत्ती जी ने आख्या तो भावें किसी होर ने आख्या, नहीं पावन ग्रंथ साहब दिता, नहीं नाल उठ के कीर्तपुर गए। असी भी दादे बाबे हैगे आ ना, साडे सामने साडा छोटा जिहा पोतरा अड़ सकता है? माड़ी जी घूरी वटकीए खां अड़ेगा? ते वड जोधा वो परोपकारी एक चपेड़ मारे तो सीधा नहीं कर सकता सी। तीर मल की शै है। अगलियां पिछलियां सारियां घटनावां नूं ध्यान विच रख के ना तुसी इस निर्णे ते पहुंचोगे, किसी ने भावें अपने विचों भावें किसी ने जो किया बखेड़ा खड़ा करने का यतन किया, गुरु साहब है किसी बखेड़े नूं बखेड़ा मन्निया ही नहीं। घर दे बखेड़ियां दे विच उलझे ही नहीं, जिवें बाईपास करके निकल जाइदा है ना, बाईपास करके। मैं वधेरे विस्तार नहीं करना चाहता क्योंकि शब्दाना दे होर बहुत प्रकरण जिहड़ा है साडे ध्यान करन जोगा है। सतगुरु जी ने साडियां सुरतियां बिरतियां उचियां लै गए। असीं अज अपने कलेश दूर करने होण जां दुख सुख तो बचना होवे या धन करके सानू लोड़ होवे, सतगुरां ने आख्या एवें डोल के इधर उधर, हुण मैं शब्द वरतन लगा, मैनूं खिमा कर दिओ जे, गुरु के कहा के एवें इधर उधर धक्के ना खांदे फिरिया जे। जंग को मुश्किल अत बने, ढोई कोई न दे लागू होए दुश्मना, साग पे भज खड़े सबो भजै आसरा, चुकै सब असराओ। की आखे आगे? चित आवे उस पार ब्रह्म लगै ना तत्ती वाओ। जे को होवे दुबला नंग भुक्की पीर, दमड़ा पल्ले ना पवे ना को देवै धीर, स्वार्थ स्वाओ ना को करे ना किसी होवे काज। चित आवे उस पार ब्रह्म ता नेचर होवे राज। कितने सारे पावन शब्द ने सानू सतगुरु महाराज डोलन तो बचाउंदे ने, डोलन तो। मैं कहूँगा एक मुढ़ली जी बात है, मुढ़ली जी बात, डोले ना थिड़के ना, जुड़ जाएगा, अज भी जुड़ेगा, भलके भी जुड़ेगा, जदों कोल बैठेगा, शब्द की विचार समझेगा, शब्द की विचार नूं अपने अंदर वसाएगा, फिर पता लगेगा। तो गल तो गुरु साहब ने कुछ होर आखी है, असीं कित्थे अड़ गए हैं, असीं कित्थे अड़ गए हैं। मामूली जिहियां गल्लां ते असीं अड़े फिरदे हैं। हुण किहड़ा वचन है मैं तुहाडे प्रति थोड़ा जिहा प्रगट करदे हां। सतगुरु ने ना, महाराज ने, सच्चे पातशाह जी ने असल विच सानू अंदरले विकारां तो बचाउण वास्ते सुचेत कीता है। विकार ही वड्डे रोग ने, विकारां दे विच फसिया होया ही आपां असीं सारा जीवन अपना तैश नैश कर बैठदे हां। और फिर इउं भी सियाणे विग्यानी मनोविग्यानी कहंदे ने, जेड़े बंदे मानसिक तौर पर बीमार हो गए ना, शरीरक तौर पर उन्हां हुण बीमार होना ही होना है, कोई नहीं बचा सकेगा। सतगुरु मानसिक तौर पर तगड़ियां कर दे। शब्द नाल जरूर नहीं कि साडा शरीर हर वेले छाला मारन वाला ही होवे। उम्र दे नाल दुखां सुखां विच लंघदे हां, सट फेट विचों लंघदे हां, हर वेले शरीर छाला मारन वाला तो नहीं ना रहिंदा। लेकिन गुरु बाबा गुरु अमरदास साहब ने आख्या कोई गल नहीं, गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिन्हां अंतर सुरति ज्ञान। वो कित्थे बुढ़े होए? वो नहीं बुढ़े, पर मनमुख बालक बिरध समान हैं। जेड़े बंदे ना गुरमत नूं समझदे नहीं, गुरु वालों पिठ करके तुरे फिरदे ने, अपनियां आप उदरियां मन मर्जियां करदे ने, भावें वो जवान होण, बालक तो भाव है इत्थे जवान, भावें जवान होण ते भावें बुढ़े होण, उन्हां ते ठेडे खाने ही खाने, कोई नहीं उन्हां नूं रख सकदा। तिन मारिया रखे ना कोई, आगे पाछे मंदी सोए। सतगुरु महाराज ने ना इत्थे एक होर भेत खोलिया अज इस पावन शब्द विच। की है देखना, गुर का शब्द राख मन माहे। गुरु के शब्द नूं अपने मन विच रखो।
लफ्ज़ों का तुसीं ध्यान रखियो जे, तो मैं तुहाडा ना उत्थे मैं तुहानूं उस पॉइंट ते ले जाना चाहुंदा, जे असीं समय दे विच उत्थे पहुँच जाइए तो बहुत महत्वपूर्ण नुकता है अज दा। गुरु के उपदेश नूं अपने मन विच रखो, जिहड़ा रखेगा नाम सिमर चिंता सब जाहे, जाए नहीं जाहे। भाई साहब ने बहुत ठीक पाठ किया। हाहे नूं सियारी है, बहुवचनी क्रिया है, प्रेजेंट टेंस की। नाम सिमर चिंता सब जाए। गुरु शब्द जिहड़ा है, गुरु महाराज का उपदेश जिहड़ा है, वो सानू करतार नाल जोड़दा है, जिसनों अगे इन्हां लफ्ज़ां विच आखिया, बिन भगवंत नाही आन कोए। भगवंत तो बिना होर कोई नहीं जे। मारै राखै एको सोए। मारन वाला भी रखण वाला भी एक करतार ही है। गुरु नानक साहब का बचन मैनू भी बड़ा प्यारा लगता है, तुहानू भी बड़ा प्यारा लगता है। और एक वचन दे विच ना उन्हां दे सिद्धांत का सार है। की आखदे ने, साहिब मेरा एको है। आखो सारे, साहिब मेरा, तकड़ी होके आखो, साहिब मेरा एको है, एको है भाई, एको है भाई, एको है भाई। मैं 3 बारी दोहराया है ना, गल नूं संभाल लियो जे, और कुछ भी नहीं हैगा। आपे मारै आपे छोड़े आपे देवै ले, आपे वेखै आपे विकसै आपे नदर करे। कौन? करतार खुद। ना कोई चंद सूरज की बात है। जेन कला धारियो आकाशं बैसंतरं काष्ट बेष्टं, जेन कला ससूर नखत्रिक ज्योतिं सासंग शरीर धारणं। जेन कला जिसकी कला, किसकी कला? करतार की कला, करतार की शक्ति है। सूरज विच, चंद्रमा विच, धरती विच, आकाश विच, पताल विच, सारियां विच उसकी कला है। केवल कला नाम है शक्ति का, और किसी की बात ही नहीं है। मारै राखा एको सोए। ते साडा जमन मरण गुरु पातशाह कहते ने, हुक्मे अंदर निम्मिया प्यारे। वाहिगुरू। हुक्मे उधर मझार, हुक्मे अंदर जम्मिया प्यारे। उधो सिर कै भार, हुक्मे अंदर आया प्यारे। हुक्मे जंदो जाए, हुक्मे बन चलाइया प्यारे। कुछ गल बाकी रही। बच्चे का मां दे उदर विच, पेट विच निमना बिल्कुल वैरी बिगनिंग की बात है। वो हुक्म विच ही है। जमना वो हुक्म विच ही है, जिउना वो हुक्म विच ही है। तो फिर कहते ने, पुत्रो जाना भी वो हुक्म विच ही है। लेख है बोलना, लेख है चलना, लेख है लैंदा साह। असी उस वाहिगुरू दे लिखे हुए लेखे तो बाहर तो हैगे ही नहीं किते। और सतगुरां दी दृष्टि दे विच कोई चंद सूरज नहीं, तो कोई देवता नहीं, तो कोई कुछ होर नहीं। जो वार वार कहते हैं आदेश तिसै आदेश, बोलो सारे, आदेश। आदेश हुंदा नमस्कार। आदेश तिसै आदेश, आदि अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। करतार ही है। मारे रखा एको सोए। दूसरे च जाके बचन कीता रहा, गुर के चरण हृदय उतार। फिर आखिया सतगुरां दे चरनां नूं अपने हिरदे विच धारण कर। पहला आखिया सी शब्द, हुण आखिया चरण। अग्नि सागर जाप उतरे हैं पार। ते विकारां दी अग्नि दा जिहड़ा समुंदर है, जदों करतार नूं जपेगा
तो तू पार उतर जाएगा। तीसरा वचन और गजब, गुर मूरत स्यों लाए ध्यान, गुरु दी मूर्ति नाल ध्यान लगा। गुरु दी मूर्ति नाल ध्यान लगा तो की होएगा, इहियां उहुआं पावे मान, तू हमेशा सब थावां ते सत्कारिया जावेगा, तैनू मान मिलेगा। अखीर ते आखिया सगल त्याग गुर सरणी आया, जेड़ा सब कुछ छड़ के ना गुरु साहब की शरण च आ गया, जेड़ा आ गया मिटे अंदेसे नानक सुख पाया। वाह, अंदेसा हुंदा फिकर, जिन्होंने पहला चिंता भी आखिया, मिटे अंदेसे सारे फिक्र दूर हो गए, नानक सुख पाया, उन्होंने सुख पाया। वो सुख जिन्हों परम सुख आखिया। जिहड़ा मैं नुकता तुहाडे नाल ना साझा करना चाहता हाँ, असी विचार इसे लिए करते हुंदे आ। मैं कितनी बार आखदा, इत्थे भी बचन मैं करदा, तुसां ने सुनिया होवेगा जरूर, कथा नाम हसाउण दा नहीं है। मैं चुटकले सुना सुना के तुहानूं हसाउणा चाहां, कथा नाम रवाउण दा नहीं है। मैं इस ढंग दे नाल वैरागमई गल करां, मैं रवाउण दे विच ही अपनी समझां भी कथा दी सफलता है। कथा नाम भड़काउण दा नहीं है। असी स्टेज ते बैठ के एक दूजे दे या किसी दे विरुद्ध भड़काइए, ये कथा नहीं हुंदी। कथा की है? कथा का मुख लक्षण हुंदा है ना रवाउणा, ना हसाउणा, ना भड़काउणा। कथा का मुख लक्षण है गुरु के शब्द नूं समझना ते समझाउणा। शब्द गायन हो रहा हुंदा है, जरूर नहीं कि हर मनुख शब्द के नाल उसकी समझ चल रही है तो समझ रहा है, लेकिन कथा तो है ही समझण समझाउण वास्ते है। तो उस समझ वाली बात डाढ़ी प्यारी तो बड़ी कीमती है। देखो पहले पद में सतगुरां ने शब्द वरतिया, गुर का शब्द राख मन माहे। दूजे में आखिया गुर के चरण हृदय उरतार। और तीजे पद में जाके आखिया गुर मूरत स्यों लाए ध्यान। इसका मतलब है शब्द कुछ होर है, हाँ जी, चरण कुछ होर ने, मूर्ति कुछ होर है। बस यह ध्यान रखने वाली गल है। जिसनों चरण आखिया है वही शब्द है, जिसनों मूर्ति आखिया है वही शब्द है, जिसनों शब्द आखिया है वही मूर्ति है, वही सतगुरां दे चरण है, और नहीं कुछ। मैं फिर बेनती कर दिया सारिਆਂ ਦੇ वास्ते, भाव है गुरु का उपदेश, भाव है सतगुरां दी सिक्ख्या, भाव है सतगुरां दी सेध। देखो एक पावन शब्द होर मैं तुहाडे ध्यान विच लियावां, असी अक्सर ही पढ़िया करते हैं, ऊठत सुखीया। बोलो सारे, ऊठत सुखीया, बैठत सुखीया। बोलो तुहानूं याद होना चाहिए। आखो मेरे भैणा भाई, ऊठत सुखीया, बैठत सुखीया, भौ नहीं लग गए जां ऐसे बुझिया। दूजा पद, सोए अचिंता जाग अचिंता, जहां कहां प्रभ तू वर्तनता। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया। गुर मंत्र दृढ़ाया। उत्थे देखना शब्द का स्वरूप की है। गुर दे नारे नूं सिहारी है। गुरु ने मंत्र का जिहड़ा तत्ते दे पैर छोटा रारा पाया, थले औंकड़ पाया होया। भाव है गुरु का मंत्र, गुरु ने मंत्र दृढ़ करवाया। मंत्र तो भाव है उपदेश दृढ़ करवाया। केड़ा उपदेश दृढ़ करवाया? जिथे पहले पद विच भी इशारा कर दिता,
उठत सुखिया बैठत सुखिया भौ नहीं लागै जहां ऐसे बुझिया कैसे बुझिया। ए गुरु ने मंत्र दृढ़ करवाया, आखिया राखा एक हमारा स्वामी सगल कटा का अंतर। आखो सारे, राखा एक हमारा सगल कटा का अंतर जमी। हुण जदों ऐ सूत्र साडे हत्थ विच आ गया, ऐ मंत्र साडे हत्थ विच आ गया, हुण उठत सुखिया बैठत सुखिया सोए अचिंता जागे अचिंता। घर सुख वसिया बाहर सुख पाया, कदों जहां ऐसे बुझिया ऐसे बुझिया, होर नहीं कुछ। मैं हथ जोड़ के आखदा सतगुरां दे चरणों में अरदास करदा हाँ, गुरु पातशाह किरपा करन, सानू सारियां नू सुमत बख्शण, सानू सारियां नू शक्ति बख्शण। असी माड़े मोटे दुख सुख दे विच अडोल रहीए ते ऐस गल नू संभाल के रखीए, ऐस गल नू संभाल के रखीए। कदी पंजवें पातशाह जी ने आखिया, अनक जतन नहीं ओत छुटारा, बहुत सियाण पे आगल पहारा। हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभ की दरगाह शोभा सेत। मन मेरे गहो हरि नाम का ओला, तुदे न लागै ताता चोला। कितनियां सारियां होर उदाहरणां दित्तियां सतगुरु सच्चे पातशाह ने। उन्होंने पता है असी बंदे थोड़ दिले हाँ, छोटी जी दृष्टि वाले हाँ, असी लम्मी नज़र वाले नहीं हैगे। असी घबराउंदे हाँ, डरदे हाँ। मैनूं तां इउं लगदा है जिवें सतगुरां नूं ना साडीआं इन्हां चिंतावां दे बाबत पूर्ण रूप विच ज्ञान है, ते वो चाहुंदे ने कि मेरा सिख पुत्तर, मेरा सिख भरा, मेरा सिख भाई जदों किते थोड़ी बहुती डोलण आवे ना अंदर, तो फिर वाहिगुरू जी अगे हथ जोड़ के आखे, डंडौत बंधन अनेक बार। आखो सारे, डंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समर्थ। डोलण ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। डोलण ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। किसे मूर्ति नूं गुरु जान के मत्थे टेकने, किसे मूर्ति नूं प्रभु जान के मत्थे टेकने, किसे बंदे दे चरण फड़ के बह जाने भी देखो इत्थे तां गुरु के चरण राख मन मैं आखिया होया। ये साडी भुल होवेगी, भुल होवेगी। मैं सबना गुरु सिखां दे प्रति अरदास करदा, ते साडे जिहड़े मोहतबर आगू ने ना, जिहड़े थोड़ियां थोड़ियां आप उदरियां करके संप्रदावां चलाउंदे ने ते सारा कुछ करते ने, गुरु साहब की कोई फोटो किसी तरह मन कलपति बना के ते आखना भी ये गुरु साहब का चित्र है, ये सतगुरां दे दर्शन है। मैं हथ जोड़ के कह सकदा, नचीज एक निमाणा जिहा मैं प्रचारक हाँ, सिख नूं ये अधिकार नहीं सतगुरां दे बाहियां लकीरां नूं सिख उलंघ जावे ना, ये ना करो, ये जुल्म है, ना करो। ये सिखो, सिख संतो, सिखां दे साथ जे सिख संप्रदा आखदे हो तो गुरु की वाही लकीर दे अंदर अंदर रह के ना अपनी माड़ी मोटी जिहड़ी रीत शीत जिन्हों कहंदे ने, अपनी मर्यादा कहंदे ने, कर लो वध घट, तुसीं नहीं रह सकते तां। पर गुरु शब्द है, गुरु कोई तस्वीर नहीं, गुरु शब्द है, गुरु कोई वजूद नहीं। गुरु शब्द है जिहड़ा शब्द सानू एक करतार दे नाल जोड़दा है। तो मैं कहंदा उही सानू अज चेता करवाया महाराज ने, बिन भगवंत नाही अन कोए, मारै राखै को सोए, मारै राखै एको सोए, राखै एको। तगड़े होके आखो, बिन भगवंत नाही अन कोए, बिन भगवंत नाही अन कोए, बिन भगवंत, बिन भगवंत मारै रखै एको सोए।
आदि अंत मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमन नानक आगनासन जगदीश्वरा। करतार दे पावन चरणों में बेनती करो सतगुरु साडे अंदरलियां बीमारियां दूर कर देन, विकार दूर कर देन, अंदरों असी निर्मल होइए, अंदरों असी नरोए होइए। ते निर्मल ते नरोए मन करतार नाल जुड़े हुए होंदे ने। परवाह ही कोई नहीं किसी जहांगीर दी, परवाह ही कोई नहीं किसी औरंगजेब दी, परवाह ही नहीं किसी होर दी। राख पिता प्रभ मेरे मुहे अवगुण सब गुण तेरे। फुल्लां दी खिमा बख्शियो जी, इन्नी सेवा प्रवान करियो जी। फतेह बुलाइए गज बच के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।